हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो दिस इज़ अ वीडियो ऑन जोग्राफिकल इंडिकेटर्स। और रिसेंटली अपने हैदराबाद के लाख बैंगल्स जो लाड़ बाज़ार में मिलते हैं उसको जीआई टैग मिला। सो लेट अस सी इन डिटेल अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज़ जीआई टैग और हैदराबाद या रादर तेलंगाना में कितने प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि जीआई टैग का लोगो क्या है। इट इज़ शोइंग लाइक अ पॉइंट, लोकेशन का पॉइंट, राइट। सो दिस इज द जियोग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब कि एक जगह पर उसकी खासियत की चीज़ वहाँ पर उस चीज़ को वी आर गिविंग अ जीआई टैग। ओके, व्हाट इज इट? इट इज़ अ कलेक्टिव राइट। किस किस को देते? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को, नेचुरल या मैन्युफैक्चर्ड हो तो ऐसे गुड्स को हम जीआई टैग देते। व्हाट वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑल अक्रॉस इंडिया that had got the GI tag? It was the Darjeeling tea in 2004. मतलब GI tags 2004 onwards इंडिया में देने स्टार्ट हुए. Now it is governed by what? It is governed by WTO's agreement which is TRIPS agreement के अंदर. So it is like a intellectual property. जैसे copyright रहता, copyright is for something that you create. It is like a art piece or a song or a book that you write. So that is a copyright. इसी तरह से GI टैग देते। अब इसको गवर्न कौन करता है इंडिया में? which act governs GI tags? It is the Geographical Indication of Goods Registration and Protection Act 1999. अब एक बार आपको जीआई टैग मिला तो वो कितने साल तक वैलिड रहता? 10 साल तक वैलिड रहता और आप रिन्यू भी करा सकते हैं 10-10 साल के लिए। नाउ दिस फॉल्स अंडर विच मिनिस्ट्री? इट इज DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इज अ नोडल एजेंसी। सबसे ज़्यादा जीआई प्रोडक्ट्स आर फ्रॉम कर्नाटका। And if we talk about the handicrafted GI tags, Tamil Nadu has the highest handicraft GIs and Maharashtra has the largest agricultural products that have got GI tags. Okay. Now what is the importance of GI tag? क्या मिलता अगर आपको GI tag मिला, जैसे लाख बैंगल्स को मिला? सो व्हाट इज़ द बेनिफिट फॉर देम? तो एक तो ग्लोबल रिकग्निशन मिलता, आप एक्सपोर्ट अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। आपके प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएटेड एक अलग आइडेंटिटी मिलती, ओके। एंड बेसिकली व्हेन यू गेट अ ग्लोबल रिकग्निशन यू स्टार्ट टू अर्न मोर। सो बेसिकली सब पैसे का खेल है। एंड इट विल ऑल्सो बेनिफिट रूरल इकोनॉमी, क्योंकि बहुत सारे अपने जो आर्टिस्टिक हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें हैं वो they are produced in the villages. So this way we can boost the rural economy as well. Okay, so in general GI questions that can come, GI tag is not applicable to whom? So we have seen that it is applicable to agricultural produce, it is applicable to handicrafts, and it is also applicable to textiles. It is not applicable to farming practices. So GI tag is not applicable to farming practices. Now, as I mentioned that there are other intellectual properties called copyrights and trademarks. So how is copyright, trademark and GI tag different? Okay. So while copyrights and trademarks are monopoly private intellectual properties, GI tags are publicly owned. So we have already seen ऊपर कि GI tag is a collective right. So this is for the private people. If I have published a book, I will get the copyright, I will get the trademark for a इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट दैट आई हैव, बट GI टैग्स आर कलेक्टिव। चाहे किसी ने भी अप्लाई किया हो, whosoever is making the लाख बैंगल्स will get that benefit of GI tag. Okay, so it is like a collective right. Next, GI is given for goods. Okay, GI is only given to goods. लेकिन ट्रेडमार्क्स आप गुड्स को भी दे सकते हैं और सर्विस को भी दे सकते हैं। जैसे म्यूजिक का भी ट्रेडमार्क रहता, ओके। द टी सीरीज के जो एल्बम्स रहते हैं तो दे हैव अ डिफरेंट ट्रेडमार्क। इंटरेस्टिंगली OU के आर्ट्स बिल्डिंग को भी ट्रेडमार्क मिला, ओके। सो दिस इज वेरी यूनिक। नाउ फाइंड आउट विच आर द अदर buildings in India which have got trademark. Okay, buildings in India which have got trademark. In Hyderabad it is OU, and please comment down below. Now if we see the similarity, the only similarity between GI and trademark is that they both function as source indicators. मतलब we can come to the source कि ये चीज़ किस लिए है. So if we come to Hyderabad, or rather if we talk about Lakh Bangles, we can source it to Hyderabad. If we talk about OU Arts Building trademark, we can source it to Hyderabad. Okay, so that is the most common thing. बाकी differences अपन ने ऊपर देखे हैं. Okay, so how many GI tags do we have in Telangana? We have 17 GI tags right now, beginning with 2005 Pochampalli Ikat. Okay, so I'll just list out the names. These are in alphabetical order, but chronologically if we see,
we have the Pochampalli Ikat, which got the first GI tag from Telangana, which is 2005. Now, interestingly, after the state was born in 2014, there are only 6 GI tags, or rather now लाख bangles है तो 7 GI tags after the state was born, and there were 10 already when the state did not exist as a separate state. Okay, मतलब combined आंध्र प्रदेश में तेलंगाना region specific 10 GI tags थे, but after the state was formed we have got 7 GI tags. So starting with Pochampalli Ikat, which is 2005, then we have silver filigree, which is 2007, and then we have Nirmal paintings and Nirmal furniture in 2009, Cherial paintings in 2008, Nirmal furniture in 2009, Nirmal toys in 2009, but Nirmal paintings got the GI tag in 2019. Hyderabad Halim got the GI tag in 2010. Now the Lakh bangles that have got the 17 GI tag is the second product from Hyderabad which has got the GI tag. Rest of them are from Telangana. However, specifically from Hyderabad, it is Hyderabad Halim and Hyderabad Lakh bangle. Then we also have the Pemberti metal craft in 2010. Then we have the Siddipet Gullabama in 2012. Then we have Narayanpet handloom sarees in 2013. We'll go in detail henceforth in the video, but this is the chronological order. If you want to take a screenshot, you may. Then the 16th one, after all these, 16th one is the Tandoor Red Gram. Okay, Tandoor Red Gram, and the 17th one is Hyderabad Lakh bangles. There are some of the other products like Warangal chilies, okay, and Balanagar custard apples, which are yet to get a GI tag. So they are lined up for 2024 and 2025. But on this date, we have 17 GI tags from Telangana. Let's go and look into the details of each of them. Okay, so starting with Adilabad Dokra. Dokra is what? It is a bell metal craft. Okay, it is a craft that is made with a bell metal. And bell metal is made of what? Copper and tin generally. Okay, so it is a tribal craft and it is mainly done by the Voj community, which is the Ojharis or Otaris. Okay, and Adilabad के कौन से गांव में इसको प्रोड्यूस करते हैं? It is the Ushegaon, Jangaon, Chittalburi and Kesalguda villages. What is unique about these Adilabad Dokra craft, metal craft? It is that the pieces do not have any joints. जोड़ के नहीं बनाया हुआ है, एक ही metal के piece से उसको बनाया गया है. With what technique? It is made through the lost wax technique. It is a very ancient technique. Okay, and only pure honeybee wax is used to provide that more strength and flexibility to the craft. Okay, so this is unique about Adilabad Dokra, and it has got GI tag in the year 2018. The next GI tag is the Banganpalli mangoes, which is also called as Benisha, Banisha, Chapatai and Safeda. And where are they generally grown? कहाँ पे उगाते? खम्मम, महबूब नगर, मेदक एंड आदिलाबाद. हिस्टोरिकल फैक्ट ये भी है कि बेंगनपल्ली क्या है? इट वॉज अ टाउन इन कर्नूल डिस्ट्रिक्ट which acted as a capital to the princely state of Hyderabad from 1790 to 1948 till the time Hyderabad got merged into the Indian Union. उस टाइम तक ये बेंगनपल्ली ही अपना कैपिटल रहे सो है, एंड दैट इज़ वाई इट गॉट द पेट्रनेज ऑफ निज़ाम, और वहाँ पर बगीचे बनाए आम के एंड वहाँ पर ग्रो करते थे. नाउ व्हाट इज़ सो यूनिक अबाउट इट? इट द एग्रोक्लाइमेटिकल फैक्टर्स कॉज क्रिएट अ यूनिक टेस्ट टू दिस पर्टिकुलर मैंगो. और कौन से साल में इसको जीआई टैग मिला? 2017 में. नेक्स्ट जीआई टैग है चेरियाल पेंटिंग्स. स्क्रोल पेंटिंग्स बोलते हैं क्योंकि कपड़े पे करते हैं, सो दे आर वेरी लॉन्ग काइंड ऑफ पेंटिंग्स. नाउ विच डिस्ट्रिक्ट? सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट. एंड विच क्लॉथ? जनरली इट इज़ अ खादी कॉटन क्लॉथ. ओके, और क्या पेंट करते हैं उस पर? द थीम्स आर बेस्ड ऑन रामायण, महाभारत, Bhagavatam, Shri Puranam, Markandeya Puram, etc. The epic themes of religious basically. And the origin of these kind of paintings is traced back to 5000 years. और main community जो इन paintings को बनाती या use करती, it is Kaki Padagallu. So which was the community that was creating the metal craft, that is the Adilabad Dokra? It was the
ओझारी और वोक कम्युनिटी, राइट. सो दिस इज काकी पड़गल्लू कम्युनिटी. एंड प्रेजेंट डे में क्लॉथ तक ही नहीं है ये पेंटिंग्स. दीज आर ऑल्सो क्रिएटेड ऑन मास्क, ज्वेलरी बॉक्सेस एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ग्रीटिंग कार्ड्स, हर चीज़ पे बना सकते हैं. दीज आर द काइंड ऑफ स्क्रोल पेंटिंग्स, चेरियाल स्क्रोल पेंटिंग्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट सिद्दीपेट. ओके. और इनको GI टैग कब मिला? 2008 में मिला. अच्छा, नेक्स्ट GI टैग है गढ़वाल साड़ीज़. सो गढ़वाल इज़ द मोस्ट वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना वी कैन से. ओके. सो गढ़वाल साड़ीज़. अब इसका यूनिक बात क्या है? एक तो इसका हॉरिजॉन्टल जॉइनिंग होता, जो थ्रेड्स रहते हैं इंटरलॉक किए हुए, उसका हॉरिजॉन्टल जॉइनिंग, दैट इज़ द यूनिक पॉइंट. एंड ऑल्सो दी मशीन्स आर नॉट यूज्ड टू मेक दीज साड़ीज़, एकदम हैंडमेड साड़ीज़ रहते हैं. एंड जनरली ये पूजा साड़ीज़ भी बोलते हैं क्योंकि दे आर वोन ड्यूरिंग द रिलीजियस फेस्टिवल्स. एग्जाम्पल बोनालू है, बतुकम्मा है, इन जगहों पर ये साड़ीज़ पहनी जाती. और गढ़वाल क्योंकि वी नो इवन फ्रॉम द मूवी अरुंधति, तो वहाँ पर वी नो कि वहाँ एक महल हुआ करता था, तो उसको संस्थानम बोलते थे. तो वहाँ के जो महारानी थे आदि लक्ष्मी देवम्मा, शी प्रमोटेड दीज साड़ीज़. ओके. तो पहले इन गढ़वाल साड़ीज़ को बोलते थे मध्यम पेटा, लेकिन क्योंकि गढ़वाल में आकर बहुत सारा प्रोडक्शन होने लगा तो उसको टैग कर दिया गया गढ़वाल साड़ीज़ बोल के. ठीक है. और गढ़वाल साड़ीज़ को कब मिला GI टैग? 2012 में मिला. अच्छा, जो नेक्स्ट अपना GI टैग है इट इज़ हैदराबादी हलीम. सो दिस गॉट द GI टैग इन 2010. Now this is a meat product and I guess it is the only meat product across India which has got a GI tag. Okay, so it is not just restricted to Hyderabad alone but also Rangareddy, Medak, Nalgonda districts में भी we can find Halim. Okay, and what is so unique about it? It is उसकी यूनिक culinary skill, जिस तरह से उसको बनाया जाता, that is very unique and that is why it has got a GI tag. And what does Halim literally mean? It means patience, सब्र. और किससे बनता? वीट, घी, मीट, स्पाइसेस, नट्स, बासमती राइस, ये सब यूज़ करके उसके अरोमा को बढ़ाते हुए लंबे आवर्स के प्रिपरेशन के बाद हलीम पकता. ओके. एंड जनरली इट इज़ सीन कि द ओरिजिन ऑफ हलीम हैज़ बीन ड्यूरिंग द आसफ जाही डायनेस्टी, दैट इज़ द निज़ाम्स. ओके. अब नेक्स्ट GI टैग है नारायणपेट हैंडलूम साड़ीज़. अगेन हैंडमेड रहेंगे ये. एंड इट हैड गॉट द GI टैग इन 2013. नारायणपेट इज़ दिस. Now what is the origin of these saris? It is during Chhatrapati Shivaji Rao when he came to the Telangana region in 1630 AD. तो अपने साथ कुछ वीवर्स को भी साथ में लेके आए और उनके पुश्तैनी मतलब यहाँ पर स्टार्ट हो गए इनका बनाना. ठीक है. सो व्हाट इज़ द मटीरियल दैट दे यूज़? इधर इट इज़ ईदर प्योर कॉटन, प्योर सिल्क या दोनों का मिक्सचर. और जरी वर्क रहता, थ्रेड वर्क रहता. एंड इनके जो ब्राइट कलर्स का रीज़न है, इफ़ यू सी हियर, द रीज़न फॉर द ब्राइट कलर्स इज़ द वाटर क्वालिटी. जो करीब में पानी है, दैट इज़ हाउ दे गेट द ब्राइट कलर फ्रॉम. ओके. एंड नारायणपेट वॉज बिलोंगिंग टू द अर्स्टवाइल महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट, तो उसका ही पार्ट था और वो डिवाइड हो गए. सो इफ़ यू वांट टू सी विच डिस्ट्रिक्ट्स हैव डिवाइडेड इनटू विच डिस्ट्रिक्ट्स नाउ, क्योंकि पहले जब स्टेट बना था तो 10 डिस्ट्रिक्ट्स थे, अभी 33 हुए. तो अगर आपको ये भी वीडियो देखना है तो इट इज़ देयर इन द तेलंगाना सीरीज़ ऑफ द सेम यूट्यूब चैनल. सो उसमें जाके आप तेलंगाना सीरीज सर्च करें तो यू विल फाइंड अदर वीडियोज़ रिलेटेड टू तेलंगाना. ओके. ना कमिंग टू स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर नारायणपेट हैंडलूम साड़ीज़ की यूनिक बात क्या है? यूनिक ये है कि पूरे जो साड़ी है उसमें चेक्स वर्क का रहता. इफ़ यू सी द चेक्स वर्क इज़ देयर ऑल थ्रू आउट द साड़ी. और दूसरी चीज़ पॉइंटेड एरोज रहते उसके बॉर्डर पे. ओके. सो दिस इज़ कॉल्ड थेनी पल्लू. और टेम्पल बॉर्डर रहता. यूजुअली इट इज़ कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ बॉर्डर इज़ कॉल्ड टेम्पल बॉर्डर. सो 3 यूनिक चीज़ें हैं. गढ़वाल साड़ीज़ में यूनिक क्या? उसकी हॉरिजॉन्टल जॉइनिंग होते थे. ठीक है. जो थ्रेड वर्क करते थे उसकी हॉरिजॉन्टल जॉइनिंग होती थी. यहाँ पर क्या है? तेनी पल्लू और टेम्पल बॉर्डर और आपके पूरे साड़ीज़ में चेक्स वर्क. सो दिस इज़ द यूनिक पॉइंट ऑफ नारायणपेट हैंडलूम साड़ीज़. सो द नेक्स्ट GI टैग इज़ द निर्मल फर्नीचर. निर्मल डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से बिलोंगिंग फर्नीचर. नाउ व्हाट इज़ सो यूनिक अबाउट दिस फर्नीचर कि सिर्फ टीक के वुड से, ओके, ओनली यूजिंग द टीक वुड दे क्रिएट दिस फर्नीचर. और उसके ऊपर गोल्डन कलर की फ्लोरल डिज़ाइंस बनाते. सो दैट इज़ यूनिक अबाउट द निर्मल फर्नीचर. और
फर्नीचर को ज्वाइन करने के लिए भी कीले यूज़ नहीं करते. देयर आर नो नेल्स दैट आर यूज्ड. दे यूज द वुडन पेग्स ओनली टू ज्वाइन एंड एडहेसिव्स यूज़ करते. सो नेल्स यूज़ नहीं करते, टीक वुड से बनाते और गोल्डन कलर की फूल पत्ती से डिज़ाइन बनाते. ओके, सो दिस इज यूनिक अबाउट निर्मल फर्नीचर विच हैज़ गॉट द GI टैग इन 2009. You can have a look at the furniture as well. Okay. नेक्स्ट है आपके निर्मल टॉयज. सो फर्स्ट वॉज निर्मल फर्नीचर 2009. नेक्स्ट इज निर्मल टॉयज एंड क्राफ्ट्स 2009. सो वॉट इज यूनिक अबाउट दिस, दैट निर्मल टॉयज आर मेड फ्रॉम द पोनिकी वुड. वी सॉ फर्नीचर वॉज मेड विथ टीक वुड एंड दीज टॉयज आर मेड विथ पोनिकी वुड जो लोकल फॉरेस्ट में अवेलेबल है. और किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके ये टॉयज़ बनाए जाते, तापी एंड तोचान. इस तरह के दो यूनिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके ही इनको बनाया जाता है. एंड अनदर यूनिक फैक्टर इज़ दैट दे आर नॉट वेरी इजीली ब्रेकेबल. बहुत लाइट वेट रहते हैं और जल्दी टूटते भी नहीं. और उनके ऊपर जो कलर करते दोज आर ऑल्सो यूजिंग द नेचुरल कलर्स. जो बार्क ऑफ द ट्री रहता, इंडिगो रहता, टर्मरिक रहता, हल्दी, इन सब कलर्स यूज़ करके ही इस पर रंग चढ़ाते. सो दीज आर द निर्मल टॉय. Next we have the Nirmal paintings which got the GI tag in 2019. So furniture and toys got it in 2009 and painting got it in 2019. So what is unique about this? Generally painting is done. We had already seen the Cheryal scroll paintings of Siddipet. So they were done on a khadi cotton cloth. लेकिन ये निर्मल paintings जो है wood पे करे. ठीक है, इट इज़ नॉट ऑन क्लॉथ, इट इज़ नॉट ऑन पेपर, इट इज़ ऑन द वुड दैट दे डू दिस पेंटिंग. और वुड पे कैसा पेंटिंग करते, यूजिंग द नाइट्रोसेल्यूलोज कलर्स. ओके, और स्पेशल गोल्ड पाउडर, ये दोनों चीज़ यूज़ करके वहाँ पर करते. और कौन सा वुड यूज़ करते, जनरली द टीक वुड. सो वी कैन ऑल्सो से दैट निर्मल फर्नीचर के ऊपर भी अगर पेंटिंग किया गया तो दैट इज ऑल्सो कैन बी कंसिडर्ड एज निर्मल पेंटिंग. ओके, तो इट वॉज जनरली स्टार्टेड इन निर्मल डिस्ट्रिक्ट ओनली. लेकिन लेडी अली हैदरी इन 1951 शी ब्रॉट द आर्टिजान्स फ्रॉम द निर्मल डिस्ट्रिक्ट टू हैदराबाद विच इज़ मुशीराबाद. और वहाँ पर लाकर इन पेंटिंग्स को और बढ़ावा दिया गया. ओके, तो उसको बनाने की टेक्निक क्या है कि आप पहले उसको स्केच आउट करेंगे. यू स्केच इट आउट ऑन द वुड एंड देन यू फिल द कलर्स. सो दीज आर सम ऑफ द निर्मल पेंटिंग्स. और ये ईजिली अगर आप आज खरीदे तो 50 साल तक वैसे की वैसे रहती. सो यू कैन सी द ब्राइट यूसेज ऑफ कलर्स ऑल्सो इन द निर्मल पेंटिंग्स. Next we have the Pemberti metal craft. We had already seen one metal craft which was Adilabad Dokra metal craft which had got the GI tag in 2018. This Pemberti metal craft got GI tag in 2010 along with Hyderabad Halim, right? And this belongs to the Jangaon district of Telangana. Now what is so unique about these पेम्बर्ती मेटल क्राफ्ट कि ये सबसे पुराना, वी कैन से इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट मेटल क्राफ्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट. क्योंकि 5000 साल पहले मेटल वर्कर्स जिनको हम विश्वकर्मास भी बोलते थे, दे यूज टू डू दिस मेटल क्राफ्टिंग. एंड सिर्फ ये प्योर ब्रास से बनता. सो अडिलाबाद डोकरा किससे बनता, बेल मेटल. एंड आई टोल्ड यू बेल मेटल इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन एंड ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक. ओके, सो और सबसे ख़ास बात ये भी है कि मशीन और डाई दोनों चीज़ें यहाँ पर यूज़ नहीं होती. सो यू कैन सी दिस इज़ द पेम्बर्ती मेटल क्राफ्ट. इन आर एंशियंट दादी नानी हाउस वी कुड हैव सीन दिस काइंड ऑफ गमलाज. ओके, नेक्स्ट वी हैव द पोचमपल्ली इक्कत विच वॉज द फर्स्ट GI टैग फ्रॉम तेलंगाना विच हैज़ गॉट GI टैग इन 2005. ओके, अब इसकी यूनिक बात क्या है, एंड टुडे दिस पोचमपल्ली इक्कत इज़ इन we can say Yadadri Bhuvangiri district. Okay, what is unique about this, उसकी unique tie and dye, किस तरह से उसको कलर किया जाता है इक्कत. Okay, so that is the unique method of sequential method of tying and wrapping and getting the color. And also unique is the chokra design. तो डायमंड के अंदर स्क्वायर बना हुआ. So this is a unique design that is there in the Pochampalli इक्कत. And we can also see the Pochampalli Handloom Park which is present there. And also ऐसा कहा जा रहा है कि एक म्यूजियम भी बनाएंगे which will act as a GI tourism in Pochampalli. Okay, so these are some unique points about Pochampalli इक्कत. अच्छा, ऑल्सो फन फैक्ट 2017 में पोचमपल्ली के इक्कत के लोगों को भी GI टैग मिले हुए. ओके, सो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन एड ऑन टू. नेक्स्ट वी हैव द सिद्दीपेट गुल्लबामा साड़ीज़. ना गुल्लबामा मतलब क्या, गुल्लबामा मतलब जनरली
मटका लेके चलती हुई औरतें. सो दिस इज़ वेरी यूनिक अबाउट दीज साड़ीज़ कि उनके जो बॉर्डर रहती है उसके ऊपर इस तरह की पिक्चर्स, पिक्टोग्राफी रहती कंपलसरी. और यहाँ पर प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? कोंडापाका, दुब्बाका. नाउ सिद्दीपेट का और एक GI टैग कौन सा है? चेरियाल स्क्रोल पेंटिंग्स. ओके, दैट इज ऑल्सो फ्रॉम सिद्दीपेट. नाउ दिस इज वेरी यूनिक. एंड व्हाट इज अनदर यूनिक थिंग कि खुद के हाथ से ही बनाया, हैंडमेड साड़ीज. तो तीनों साड़ीज जिनको GI टैग मिले सो है तेलंगाना में, विच इज़ द गढ़वाल साड़ीज, द नारायणपेट साड़ीज एंड दिस सिद्दीपेट साड़ीज, तीनों हैंडमेड साड़ीज हैं. ओके, और इसका और एक पॉइंट क्या है? ये पहनने में तो रफ रहती लेकिन कंफर्टेबल रहती, और रफ रहती इसलिए ड्यूरेबल भी रहती. सो दीज आर वी कैन से वेरी रफ एंड टफ साड़ीज विच विल बी वेरी ड्यूरेबल. तो नाम से ही वी कैन अंडरस्टैंड गोलाबामा मतलब इस तरह के मटके लेके चलती हुई औरतों का फोटो कंपलसरी वहाँ पर रहता उनके बॉर्डर पे. सो दैट इज़ यूनिक अबाउट दीज साड़ीज. ओके, और इनको GI टैग कब मिला? 2012 में GI टैग. नेक्स्ट वी हैव द सिल्वर फिलिग्री ऑफ करीम नगर. ओके, सो करीम नगर डिस्ट्रिक्ट की सिल्वर फिलिग्री. करीम नगर को किस वजह से करीम नगर नाम मिला? बिकॉज ऑफ सैयद कमरुद्दीन जो वहाँ के किलादार थे. ठीक है, तो 2007 में GI टैग मिला. दिस इज द सेकेंड GI टैग. एंड वेयर इज करीम नगर लोकेटेड? इट इज़ लोकेटेड ऑन द रिवर ऑफ मानेर. एंड बेसिकली दिस वर्क, ओके, दिस सिल्वर फिलिग्री वर्क स्टार्टेड इन एलेगंडल विलेज, 10 किलोमीटर दूर, लेकिन बाद में थोड़े दिन के बाद में करीमनगर शिफ्ट हो गए वो लोग 1905 ऑनवर्ड्स. नाउ व्हाट इज़ यूनिक अबाउट दिस? जो सिल्वर मटेरियल रहता या सिल्वर मेटल रहता उसको आप थिन वायर्स की तरह you transform them and then twist them to give the design. Okay, so this is very unique, and despite the modern technology they use the same technique to make these things. Okay, तो आप पानदान बना सकते, आप आपके ज्वेलरी बॉक्स बना सकते. there are many things that you can make out of this. So this is the silver filigree work. Okay. Next we have the Warangal durris or the Warangal carpets. They have got GI tag in 2018 with Adilabad Dokra. Okay, अब ये वरंगल के कौन से एरिया में जनरली बनाए जाते? कोथवाड़ा एंड ऑल्सो कंचनपल्ली, करीमबाद, परकल, रल्लाकुंटा, रायापर्ती, पर्तीपाका, वेंकटेश्वरपल्ली, etc. Now what is unique about these durris or the carpets is they are multicolored durris and they are woven with which technique? Weft interlocked technique. Okay, और यहाँ पर डिज़ाइंस क्या बनाते? ज्योमेट्रिक एंगुलर मोटिव्स बना सकते हैं अगर आप वीविंग स्ट्रक्चर में कर रहे. अगर आप जमखान बना रहे तो कलर्ड हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स भी बन सकते हैं. और अगर आप जानेमाज बना रहे तो शतरंजी और मेहरब मोटिव जो है वो बनाएंगे. मतलब कौन सी डिज़ाइन बनाएंगे डिपेंड्स ऑन फॉर व्हाट इट इज़ यूज्ड. ओके, सो दिस इज़ वन एग्जांपल ऑफ द वरंगल कारपेट. नाउ द नेक्स्ट GI टैग इज पुत्तपाका तेलिया रुमाल. नाउ नेम इटसेल्फ सजेस्ट तेलिया रुमाल मतलब थोड़ा एक ऑयली आपको उसमें टेक्सचर दिखेगा उस रुमाल में. Okay, it had got the GI tag in 2015 and it belongs to the Nalgonda district. अब और एक खास बात इसमें ये है कि इसके पीसेस जॉइन करके नहीं बनाते, तो इट इज़ एन इंडिविजुअल पीस ऑफ क्लॉथ एंड इट इज़ मेड यूजिंग वेरी ओल्ड एंड ट्रेडिशनल मेथड, जहाँ पर जिंजरली ऑयल यूज़ करते और वेजिटेबल डाई यूज़ करके उसको एक अपना यूनिक टेक्सचर और स्मेल भी मिलता. ओके, एंड जनरली पहले तो सिर्फ ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस यूज़ करते थे उसमें, बट एज एंड व्हेन टाइम हैज़ पास्ड वी हैव ऑल्सो इंक्लूडेड द फिगरेटिव डिज़ाइंस. और ट्रेडिशनली अगर देखें तो सिर्फ ब्लैक, रेड एंड वाइट यूज़ करते थे, और लेकिन मॉडर्न वे में कभी कभी येलो, ऑरेंज एंड पिंक भी यूज़ करते. तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ योर तेलिया रुमाल. ओके, नेक्स्ट वी हैव द लेटेस्ट or rather the second best latest GI tag which is Tandoor Red Gram. It had got the GI tag in 2022. कंदी पप्पू भी बोलते हैं रेड ग्राम को, और पिजन पी. अब ये कहाँ पर उगाया जाता? विकाराबाद, नारायणपेट, संगारेड्डी एंड आदिलाबाद, एंड इन द स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ तांदूर, पेद्दमूल, यालाल एंड बशीराबाद. नाउ व्हाट इज सो यूनिक अबाउट दिस? एक तो इसका अरोमा, जो खुशबू रहती है इसको पकाने के बाद, दैट इज़ डिफरेंट. द टेस्ट इज़ डिफरेंट एंड इट हैड गॉट 22 to 24% प्रोटीन. दैट इज़ सेरल्स के मामले में 3 times ज़्यादा प्रोटीन इस पर्टिकुलर तंदूर रेड ग्राम में मिलता. और ये किस वजह से मिलता? व्हाट मेक्स इट यूनिक? इट इज़ क्योंकि इट इज़ ग्रोन इन द फर्टाइल ब्लैक सॉइल एंड जिसमें एटापल्गाइट क्ले मटेरियल रहता और ह्यूज लाइमस्टोन के डिपॉजिट्स रहते. वहाँ का क्लाइमेट फेवरेबल है, और जो कल्टिवेशन मेथड है दे यूज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न.
So which is why these tandoor red gram are grown. And also unique factor is that it is grown in 3.74 lakh hectare land, जिसमें से 50% तो इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में ही उगाते. ओके. और बिकॉज इट इज़ लेटेस्ट वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट कि अगर पूछा जाए तो वेदर who has applied for this GI tag, it is the Yalal Farmers Producer Corporation, विश्वनाथपुर. ओके. एंड ऐसा भी बोला जा रहा है कि इसका एक दैट इज रेड ग्राम का एक सेपरेट बोर्ड भी अगर बना के दिए गवर्नमेंट तो इट विल प्रमोट द क्वालिटी एंड द प्रोडक्शन ऑफ दिस तंदूर रेड ग्राम. एंड वी शुड ऑल्सो अडॉप्ट in addition to the modern technology we should also adopt the contemporary technology which is AI and Internet of Things. ओके. एंड क्योंकि ये इस तरह के सॉइल में उगता तो इट इज़ लाइक अ फ्रेंड टू द फार्मर्स स्पेशली हु आर डूइंग द ड्राई लैंड फार्मिंग, जहाँ पर ज़्यादा आपके रेन की फैसिलिटी नहीं है वहाँ पर ये चीज़ कर सकते हैं. एंड दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो अ ड्रॉट रेसिस्टेंट वैरायटी. सो बहुत सारे एनवायरमेंटल भी फ़ायदे हैं एंड हेल्थ बेनिफिट्स भी है. ओके. And last but not the least, it is the 17th GI tag from Telangana which is Hyderabad लाख बैंगल्स. तो कहाँ पर मिलते ये? चार मीनार के बाजू में जो लाड़ बाज़ार बोलते वहाँ पर मिलते. एंड how did लाड़ बाज़ार got its name? From लाडली बेगम which is wife of फोर्थ निज़ाम के वाइफ के नाम पे आपको ये लाड़ बाज़ार का नाम पड़ा. और ये GI टैग अप्लाई कौन करे? चावा. ओके. विच इज़ क्रिसेंट हैंडीक्राफ्ट आर्टिजान वेलफेयर एसोसिएशन 2022 में इसको अप्लाई करी और 24 में आई थिंक फरवरी के अराउंड इसको GI टैग मिला. ओके. एंड सिंस व्हेन आर दीज लाख बैंगल्स बीइंग मेड? सिंस द मुगल एरा एंड वी कैन ऑल्सो से कुतुब शाही और निज़ाम, इन तीनों के टाइम पे ये लाख बैंगल्स बनते थे. एंड theories also go across that यूनानी हकीम्स फ्रॉम ईरान जब वो आए तो उनका ये सेकंड बिजनेस था, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम था चूड़ियाँ बना के बेचना. क्योंकि हकीम का काम क्या था? कोई बीमार पड़ेगा तो दे विल अर्न मनी. सो दे हैड दिस सेकंड सोर्स ऑफ इनकम ऑफ मेकिंग बैंगल्स एंड अर्निंग. देयर इज अनदर थ्योरी विच सेज दैट विजयनगर के जो आर्टिजान्स थे वो लोग यहाँ पर आए एंड दे स्टार्टेड दिस मेकिंग ऑफ लाख बैंगल्स. सो देयर आर टू सॉर्ट ऑफ थ्योरीज. एंड मेन चीज़ तो if you have to sum up in one line we can say that these lakh bangles are a symbol of unique craftsmanship from the 14th or rather 15th century. 15th century से unique craftsmanship ये बैंगल्स के रहते हैं. एंड इट हैज़ ऑल्सो गॉट अ लोगो ऑफ इट्स ओन. हैदराबाद लाख बैंगल्स का लोगो भी बना दिए. चार मीनार है एंड रेड चूड़ियाँ है जो लाख बैंगल्स की तरह दिखते. ओके. So yeah, this sums up the geographical indicators of Telangana. I'll leave you with one question. You have to tell me in comments कि GI की रजिस्ट्री कहाँ पर करते, मतलब GI का जो अपने ऑफिस है वो कहाँ पर लोकेटेड है इंडिया में. ओके. सो आई हैव शेयर्ड इनफ इन्फॉर्मेशन अबाउट GI. आई डिडंट टेल दिस इन्फॉर्मेशन. तो अगर आपको पता है तो यू कैन कॉमेंट डाउन एंड यू कैन ऑल्सो कॉमेंट डाउन आपको और कौन सा तेलंगाना रिलेटेड वीडियो होना. सो आई विल ट्राई टू मेक दैट. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. Share the video if you like it and I will see you next time. Thank you. Bye.